start. Techno Ayurveda welcomes to one and all those who are eager to know about the secrets of the Ayurveda. Techno Ayurveda actually started in 2008. Initially, it is only a word. Gradually, it started becoming a brand. Whatever comes out of the Techno Ayurveda, the value is being enhanced. As today, as a matter of exploring the different topics in Ayurveda, School of Techno Ayurveda is proudly presenting Dr. Harsh Sehgal, who is a pearl. Why the pearl? He is a diamond in the Ayurveda fraternity. We might be hearing a lot in the day-to-day Ayurveda discussions. Today we are going to hear a foremost better and a very nice discussion over the dynamics of the pharmacology, especially in Ayurveda. Hello. Mama, to one new test. And as today we are getting initiated and started with Dhanvantari Savana, I just wish to start the Dhanvantari prayer. Techno Ayurveda is linked with Ayurveda, astrology, and many other allied subjects also. We encourage the knowledge always, all the time. Here, today, our speaker, Harsh Sehgal, who is a diamond in the sky of Ayurveda, is basically started his clinical journey in the year 2000. He is the founder and CEO of the Trilok Ayurveda Wellness Center and Specialty Clinic for the chronic diseases at the Rishikesh at Dehradun. He himself has explored a lot in Ayurveda, and while his journey, he is a personal physician to the Birla family for more than 18 years, and he got felicitated with one of the Uttarakhand Gaurav, Uttarakhand Ratnam, and Technocrats Excellency Awards also. In one sentence, I have to say, he is an authority of the subject. Today, he is speaking with his personalized understanding and established his pharmacy experiences backed with
a manufacturer, as a manufacturer of the 125 herbal formulations to purpose or to provide making an individual precision medicine. The precision of the medicine availability in Ayurveda is really, to understand, it is a very rare, and he is trying himself and he is expanding himself for more than 22 years to serve the Ayurveda. First, I met him in a seminar. I got inspired with his talk, and from that time onwards, I want my people or people those who are around me to be benefited with his talk. After a long time of 7 years almost, I got today a chance of presenting him to my friends and my people. I request, because this talk today, what he is trying to speak, formerly we used to evaluate it through different softwares. He is like a software in Ayurveda about the Rasa Panchakas. And this Rasa Panchaka, when we are looking, a walking Rasa Panchaka, analyzing the Ayurvedic drugs and trying to give an example, how we have to analyze and how we have to understand this Ayurvedic formulary in a short time. He can speak his phone number and other things at the end of his lecture so that people personally, or else he can write in the chat box. I request whatever your questions come across, please write in the chat box. In the same way, you please interact with his questions when he is going to make a question for the interaction also. I hope today we are going to be enriched with the knowledge and the path shown by the Dr. Harsh Sehgal. Thank you, and over to Harsh Sehgal. Many thanks, sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. I still remember in 2017 when we first met at YMT Medical College, and both of us were invited there as a resource person, and your presentation was on Uttarvasti and mine was on Alzheimer's. So I still remember that meeting, and it was wow. I mean, and your work, I mean, you are doing a commendable job, sir, and it's inspiring, sir. So I'll start my presentation. The dynamics of Ayurvedic pharmacology. Okay. Adverse drug reaction is considered to be an integral part of Western pharmacology. On the other hand, Vyapad Rahit Chikitsa, treatment free of any adverse effects, is the essence of Ayurveda. Rather, with respect to herbal medicines, in our daily clinical practice, we observe many other positive after effects besides treating the chief complaint. Pradhan dosh ki chikitsa ke niyam ke anusar, while we treat migraine, hyperacidity in itself gets cured. While we treat rheumatism, patient get relief in chronic constipation or migraine without any additional medication. No adverse effects and multi-purpose or multi-dimensional effects of the herbal medicine. How is it possible? I mean, कई बार ये डिस्कशन में आता है जब हमारे एम्स के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट, टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट, आई मीन ऋषिकेश, सो ऋषिकेश एम्स में वहां पर उनसे काफी इंटरेक्शन होता रहता है. तो वो एक बात होती है हमेशा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है हमारी फार्माकोलॉजी का एक इंटीग्रल पार्ट है. आप लोग व्यापक रहित की बात करते हैं, तो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये संभव है? तो इसके ऊपर हम आते हैं. इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप हम देखें. आई स्टार्टेड माय जर्नी in 2000 by treating fresh graduate, BMS किया मैंने और अल्जाइमर्स के ऊपर हमने काम करना शुरू किया. अल्जाइमर्स में शंखपुष्पी हम सब जानते हैं, पढ़ा हुआ है, कॉन्वोलुलस प्लूरिकोलस. शंखपुष्पी के बारे में जानते हैं, मेध्य औषधि है. मेध्य औषधि है और इसका हमने एनालिसिस किया और हमने अल्जाइमर्स में इसका यूसेज देखा. फिर उसके बाद
बहुत जल्दी 2 या 3 साल के अंदर अंदर हमें ऑटिज्म में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। ऑटिज्म में हमें ब्रेक थ्रू मिला और उसके कुछ सालों बाद हम हार्ट फेलियर के ऊपर भी हम काम करना शुरू कर, तो शंखपुष्पी वही है जिसके बारे में हम लोग वैद्य हम रसायन के हिसाब से देखते थे, लेकिन आज हम उसको हार्ट फेलियर के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरा मैं आपको इसमें दूसरी स्टोरी है। फर्स्ट वेव कोविड की थी और हमारे एक यूएस से पेशेंट थे, वो ड्यूरिंग फर्स्ट वेव और उन्हें किसी काम से चेन्नई आना पड़ा अपनी बेटी के साथ और उनका एकदम से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन का उस टाइम हम सब जानते हैं, इस बात से जानकार हैं कि सब कुछ बंद हो गया था। इवन जो कुरियर सर्विसेज थी, अगर हमें मेडिसिन कुछ यहाँ से भेजनी होती तो वो भी सब बंद था, मेडिकल स्टोर्स वगैरह सब बंद थे। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फर्स्ट लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी बेटी करीब 12-13 साल की यंग बच्चा, छोटा बच्चा, और उसको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का केस था। ये चेन्नई में आए हुए थे और इनकी मेडिसिन जो है ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो गई। हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारे मेडिसिन हम खुद भेजते हैं यहाँ से। इनका फोन आया कि डॉक्टर साइकिल क्या करें और कैसे करें, और शी वॉज इन फीवर, बहुत ज्यादा फीवर था और सब कुछ बंद था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, आई मीन बहुत ज्यादा परेशान थे। हमने ब्लैक पेपर, हमने कहा ठीक है आपके घर में कुछ मसाले होंगे, हमने ब्लैक पेपर की बात करी, हमने अजवाइन की बात करी, छोटी इलायची की बात करी, तो उनके पास सब कुछ था। और चांस की बात है, मसाले हमारी इंडियन किचन जो है हमारी अपने आप में एक छोटी मिनी फार्मेसी है, इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है। तो हमने उन्हें लंघन की बात करी, क्योंकि पेशेंट हमारे पास डे 1 आ गया था हमारे पास। तो लंघनम सर्वश्रेष्ठ औषधम का जो नियम है वो हमने उस पे रूल लगाया। अभी केस डायग्नोज नहीं है कि वो फीवर जो है कोविड की वजह से है या वायरल है या नॉर्मल रूटीन वायरस है या क्या है, या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का ही एक साइड इफेक्ट या कुछ और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है। वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सिर्फ फीवर था। और हमने लंघन के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। क्या चिकित्सा दी कि जब तक रेस्पेक्ट योर एपेटाइट, भूख जब तक ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना, और अगर जब भूख लगे तो आपने एक रोटी में देसी घी लगा करके अजवाइन और काली मिर्च ऊपर से डाल करके वो आप लें। अब विद इन 24 आवर्स, विद इन 12 आवर्स उनका फीवर खत्म हुआ और विद इन 24 आवर्स वो पूरी तरह से ठीक हुए। ये तब था जब हमने किचन से ही फार्मेसी डेवलप करी और हमने बनाया। तो ब्लैक पेपर को हम किसी के लिए वो एक मसाला है, एक आयुर्वेदिक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए उष्ण है तो वो दीपन पाचन त्रिकटु का एक इंग्रेडिएंट है। और एक अगर हम वैद्य को अगर डीपली उसकी अंडरस्टैंडिंग में लेकर के जाना चाहें तो ब्लैक पेपर की जो वर्सटैलिटी है वो बहुत ज्यादा है। वो कई जगह कई तरीके से कई उसमें काम कर सकती है। एक तीसरा मैं यहाँ पर केस लूंगा, स्टोरी लूंगा कि एक पायलट है, हमारे मित्र हैं ये हमारे, और इनकी हैदराबाद से, इस चांस की बात है हैदराबाद से ही ये लैंड किए गुड़गांव में। और इनको डायरिया हुआ, कुछ इन्फेक्शन, कुछ खाना पीने में गड़बड़ हुई होगी, और इन्होंने मुझसे कहा भाई डॉक्टर हर्ष की मैं क्या लूं। आई रिकमेंड हिम कि अब यहाँ से मेडिसिन एकदम से, दिस वाज इमीडिएट, हमें कुछ काम करना था। हमने महासुदर्शन उन्हें रिकमेंड करी, और जब वो गए महासुदर्शन लेने के लिए तो उन्होंने कहा भी तो फीवर के लिए है, और उसमें लिखा हुआ भी था, मेंशन किया हुआ था फीवर के लिए, डायरिया कहीं भी मेंशन नहीं था। उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा सर ये एक अपर ऊपर की लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। जब हम उसके अंदर 54 हर्ब्स होती हैं, उन 54 हर्ब्स को हम जब पूरी तरीके से एक एक करके उसका एनालिसिस करते हैं तो हम उसके उसके जो वर्सटैलिटी है, उसके जो डायनामिज्म है उस ड्रग का, वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। आप उसे यूज करें और हमें उसका फीडबैक दें कि कैसा रहा रिस्पॉन्स। तो 2 या 3 डोज में उनका इन्फेक्टिव डायरिया जो है खत्म हो गया। तो अंडर दिस बैकग्राउंड यहाँ पर ये बताना है कि भाई हम लोगों को हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ड्रग की, आयुर्वेदिक मेडिसिन की कैसी है। तो यहाँ पर एक कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं। एक सिंपल क्वेश्चन टू ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेडिसिनल यूसेज ऑफ योगराज गुग्गल। एक सवाल है छोटा सा। ओपन योर चैट बॉक्स एंड टेक्स्ट क्विक, फटाफट।
What is the medicinal usage of Yogaraj Google? I think students जो हैं अभी शांति में बैठे हुए, मेरे ख्याल से दोपहर हो रही है, तो inflammation and pain, रसायनम, excellent. Vishwa Patil, inflammation and pain. Anyone else? The medical usage of Yogaraj Google. ये सवाल था, मैंने अपने काफी सारे स्टूडेंट से पूछा, 100 के बैच था ये. और जॉइंट पेन, गुड. प्रियंका जामनगर, जॉइंट पेन, यस. तो आमवात, गृध्रसी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके बारे में सबने बात करी. एक स्टूडेंट खड़ा हुआ तो उसने कहा कि इट इज कफ वात शामक. See, this understanding is very important. जब हम किसी एक ड्रग को सिर्फ इतना ही जाने कि भाई वो जॉइंट पेन में काम करता है, तो इट इज एज गुड एज कि हम लोग ये जानते हैं कि पैरासिटामोल जो है फीवर के लिए काम करता है. लेकिन पैरासिटामोल जो है हेपेटिक सेलुलर भी है, जो आपका लीवर सेल्स को डैमेज करता है, ये भी हमें जानना चाहिए. और साथ में और क्या क्या चीजें करती है, तो वो भी एक. एट द सेम टाइम जब हम आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, तो वर्सैलिटी कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम उसे समझें कि ये वात कफ शामक है. योगराज गूगल की अंडरस्टैंडिंग हमारी वात कफ शामक के हिसाब से होनी चाहिए. एंड कैन बी यूज्ड इन रूमेटिज्म, गाउटी आर्थराइटिस, सी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरलिपिडीमिया, फैटी लीवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिम्बैगो, सियाटिका, टाइप 2 डायबिटीज. सी टाइप 2 डायबिटीज में हम लोग योगराज गूगल में हमारा काफी अच्छा रोल है, अगर मेडिसिन अच्छे से बनी हो तो. चलिए. While there are many intrinsic and extrinsic variables that needs to be considered while writing a prescription, but the key fundamentals of Ayurvedic practice are पंचभौतिक चिकित्सा, त्रिदोष सिद्धांत और दोष वैषम्य चिकित्सा, सामान्य विशेष सिद्धांत. ये तीन एंगल जो है हमें हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं. पंचभौतिक चिकित्सा, we all know everything is made up of पंचभौतिक, so we are and so the drugs. हमारे अंदर कुछ कमी होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं. इसी को ही आगे कंसाइज करके त्रिदोष चिकित्सा, दोष वैषम्य चिकित्सा की बात कही गई है कि कोई सी भी बीमारी हो उसको इवेंचुअली आपने, कोई सी भी बीमारी हो, नेमिंग द डिजीज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा. हम लोग डायग्नोस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक्स बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए क्लियर कट, लेकिन एट द सेम टाइम उस डायग्नोसिस के साथ आपको आपके दोषास का जो है अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली दोष वैषम्य चिकित्सा से ही पेशेंट ठीक होगा. हार्ट फेलियर के हमारे कई सारे पेशेंट हैं, सबका चिकित्सा, सबका प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन, यू नो, वी ऑल नो, उनके दुनिया भर के वेरिएबल्स होते हैं, काफी सारी चीजें उसमें. और फिर तीसरा जो है सामान्य विशेष सिद्धांत. सामान्य विशेष वी ऑल नो, अब यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो दोनों एग्रेसिव पार्टीज हैं. एग्रेशन से क्या शांति स्थापित होगी? नहीं होगी शांति स्थापित. किसी एक को तो शांति दिखानी पड़ेगी, किसी एक को बड़प्पन दिखाना पड़ेगा. तो वैसे ही जो है, अगर कफ का काल है, ये कफ का काल चल रहा है, तो इस कफ के काल में वमन से चिकित्सा की जाती है, और भी कई सारे दीपन पाचन के साथ भी चिकित्सा की जाती है. तो ये सामान्य विशेष का सिद्धांत है. ये तीन एंगल्स जो हैं, ये तीन जो फंडामेंटल्स हैं, ये आयुर्वेद प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So the treatment is all about synchronizing various variables, and these are the prime reason behind vyapad rahit chikitsa and multi-purpose or multi-dimensional effects of herbal medicine. व्यापद रहित चिकित्सा जो है वो तभी संभव है जब हम it's about filling the blanks, you know. ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, डिजेनरेटिव कंडीशन है, हमने रीजेनरेटिव मेडिसिन दी. तो जब हम रीजेनरेटिव मेडिसिन दे रहे हैं तो हम किसी और चीज को, किसी और एंगल को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे. So this is called व्यापद रहित चिकित्सा, सामान्य विशेष चिकित्सा. हाँ, लिमिटेशन है एकल द्रव्य की. अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा काम करते हैं सिंगल ड्रग्स जो है. देखिए, दो तरीके से फॉर्मुलेशंस बनते हैं, एक एकल द्रव्य चिकित्सा होती है और एक मल्टीपल कंपाउंड ड्रग फॉर्मुलेशंस बनते हैं. हम लोग करीब 125 फॉर्मुलेशंस अपने बनाते हैं. इसमें से करीब 25-30 जो है सिंगल हैं, कई पिष्टियां हैं एकल द्रव्य में आते हैं वो.
तो एकल द्रव्य की अपनी एक लिमिटेशन होती है। जैसे अगर हम हरिद्रा की बात करें तो मुझे आज याद है जब मैं अल्जाइमर्स के ऊपर हमने काम शुरू किया था, करीब 17-18 साल में तो 22 साल हो गए। तो 20-21 साल मतलब 1-2 साल प्रैक्टिस के 1 आध साल बाद मुझे एक रिसर्च हमारे सामने आई। डॉक्टर अमृत मुधेरा, आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दिस रिसर्चर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में, और इनका करक्यूमिन के ऊपर, इनका अल्जाइमर्स के ऊपर ये रिसर्च कर रही थी कि कैसे करक्यूमिन जो है प्लेक्स को रिमूव कर सकती है। आज इस बात को 21 साल हो गए हैं। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट दैट रिसर्च का जो फाइनल आउटकम हमारे सामने नहीं है। दूसरी बात अगर हम लोग कहें तो हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि हल्दी इज एंटी कैंसरस, पर क्या कैंसर सिर्फ हल्दी खाने से ठीक हो जाएगा? यस, इट इज एंटी कैंसरस। एंटी कैंसरस की प्रॉपर्टीज हैं और भी कई सारी उल्लेखनीय प्रॉपर्टी, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। पर क्या कैंसर का इलाज सिर्फ हल्दी खाने से हो जाएगा? नहीं, बहुत सारी चीजें, नहीं तो हल्दी खिलाते रहो सब ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है, सो वी नीड कंपाउंड formulation to treat complex disorders. Multi-component nature of medicinal herbs makes them particularly suitable for treating complex diseases and offers great potential for exhibiting synergistic actions. Laws of understanding a compound formulation. This is important. The secret of this dynamism lies in knowing and understanding the fundamentals of Ayurvedic pharmacology. सप्त पदार्थ ऑफ द्रव्य गुण, द्रव्य रस गुण वीर्य पाक प्रभाव एंड कर्म। वी ऑल नो अबाउट दिस। सब लोग कई बार कहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं इस बारे में कि सर डिफिकल्ट है आयुर्वेद की प्रैक्टिस और बड़ी चैलेंजेस हैं, मुश्किल होती है। तो उनसे यही बात कहता हूँ कि देखिए, नेचर में जाकर के सीखिए। द्रव्य है, द्रव्य है, आप उसके अंदर जब तक रसाधान नहीं होगा, उसके अंदर गुणों का अभिवर्धन नहीं होगा। रसाधान जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आता है। अभी आम का मौसम अब आने वाला है, गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी, वो पेड़ जो है खड़ा है और नेचर से वो ले रहा है जैसे भी अपने आप को सरवाइव करके। पानी नहीं है, पानी तब भी उसके बावजूद भी ना खाद है कुछ नहीं, तब भी वो उसके फ्रूट्स हो रहे हैं और धीरे धीरे वो आम पक रहा है। तो द्रव्य है, आपको चैलेंजेस में ही रस का जो है, जितने ज्यादा रसाधान, जितनी ज्यादा आप लर्निंग होगी, उतना ज्यादा गुणों का अभिवर्धन होगा। जितना गुणों का अभिवर्धन होगा, उतनी ही पोटेंसी, आपकी वीर्य बढ़िया होगा, विपाक उतना ही अच्छा होगा, प्रभाव उतना अच्छा होगा, और फिर कर्म तो सारी दुनिया देखेगी। तो ये सप्त पदार्थ जो है द्रव्य गुण में भी लगते हैं और हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी लगते हैं। तो हमने यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्मुलेशन लिया है वो अजमोदादी योग लिया है। अजमोदादी योग हमने शारंग, इसके 9 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं और हर जगह अपने अपने उन्होंने फॉर्मुलेशंस दिए हैं। हमने अपनी जो हमारा एनालिसिस था डिजीजेस में हमें क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो हमने शारंगधर संहिता के का रेफरेंस लिया। और वो सिर्फ रेफरेंस लिया क्योंकि शारंगधर संहिता में जो है 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें पहले 9 जो हैं, अजमोद, वायविडंग, सेंधा नमक, देवदार, चित्रक, पिपला मूल, सौंफ, पिपली, काली मिर्च, ये सब एक भाग है। इसके बाद हरड़ 5 भाग है, विधारा मूल और सौंठ 10 भाग है। हमने क्या चेंजेस किए, इसमें हमने 13 इंग्रेडिएंट्स डाले। संभालू बीज हमने इसमें ऐड किया, और एडिशन ऑफ संभालू बीज एंड संभाग, हमने सब कुछ संभाग किया। रीजन इज कि वहां पर जो है थोड़ी पोटेंसी हमें इंक्रीज करनी थी, और ताकि डोसेज कम हो। जब डोसेज कम होगी, पोटेंसी इंक्रीज होगी, डोसेज कम होगी। डोसेज कम होगी तो हम उसके साथ हम दूसरी हर्ब्स भी हम ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, कि उस स्टेज क्या है डिजीज की। और तो हम पोटेंसी को हम आगे प्लस माइनस करके, अकेला सीतोपलादी से काम नहीं चलता, कई बार उसमें हमें श्रृंग भस्म मिलानी पड़ती है, गुदंती मिलानी पड़ती है, टंकण मिलाना पड़ता है, यष्टि मिलानी पड़ती है, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। कई बार अकेले सीतोपलादी भी देनी पड़ती है। तो वैसे ही ये चिकित्सा है। तो इसमें हमने एडिशन ऑफ संभालू बीज एंड संभाग मेक्स अजमोदादी योग अ प्रोप्राइटरी मेडिसिन व्हिच इज स्वानुभूत। Now sir, I would like to take you to my Word document. तो आधे सेकंड, कुछ 2-4 सेकंड में मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ इसे। So this is Ajmodadi Yoga.
अब हम इसे देखते कैसे हैं और कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है, किस तरीके से हम समझते हैं। ओके, अजमोद, तो गण क्या है इसमें? शूल, प्रश्मन, दीपनीय। मैंने चरक को ज्यादा मैं रेफरेंस देता हूँ क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे शूल, प्रश्मन और दीपनीय कह करके सारे ड्रग, पूरी ड्रग का जो कच्चा चिट्ठा है वो सारा एकदम से इन 2 शब्दों में पूरा बता देते हैं। तो दिस इज जो उनका क्लासिफिकेशन है चरक का, वो मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसका रस कटु तिक्त है, गुण लघु रूक्ष तीक्ष्ण उष्ण वीर्य और कटु विपाक। अब देखिए हमने क्या किया इसमें, कर्म जो है इसमें कफ वात शामक कर्म है, और पित्तवर्धक, वेदना स्थापन, विदाही, दीपन, वातन लोमन, शूल प्रश्मन, कृमेघ्न, हृदयोतेजक, कफग्न, मूत्र प्रवर्तक, गर्भाशय तेजक, वाजीकरण। अब इसका प्रयोग जब हम देखते हैं तो अग्नि मांद्य में, अजीर्ण में, वमन में, आद्यमान में, उदरशूल में, हृदय दौर्बल्य में, कास में, श्वास, हिक्का, वस्तिशूल, मूत्राघात, कष्टार्तर और क्लैब्य। जैसे हमने इसमें नंबरिंग दी हुई है, इससे देखिएगा कि 13 ड्रग्स में से 10 ड्रग्स कफ वात शामक है, पित्तवर्धक 2 ड्रग्स हैं, वेदना स्थापन 5 ड्रग्स हैं, विदाही 2 हैं, दीपन 13, यानी कि ऑल द ड्रग्स आर दीपनीय इन नेचर। वातानुलोमन इज 5, शूल प्रश्मन 6, कृमिघ्न 9, हृदयोतेजक 2, कफग्न 6, मूत्र प्रवर्तक 1, गर्भाशय। तो इस तरीके से हमने उसमें नंबरिंग, अग्निमांद्य 11 हर्ब्स जो है अग्निमांद्य में इसका प्रयोग होता है। अजमोद आदि के 11 इंग्रेडिएंट्स का जो प्रयोग है वो अग्निमांद्य में होता है। तो इस तरीके से हमने इसका कैलकुलेशन किया और इस एनालिसिस में हमने सारी ड्रग्स को लिया। इसके बाद आ जाता है वायविडा, कृमिघ्न, कुष्ठग्न, त्रिपितग्न और शिरोविरेचन। सेम एनालिसिस रसगुण वीर्यपाक कर्म का। सेंधा नमक, सेंधा नमक इज आरोपयोगी, लवण, लघु स्निग्ध, शीत मधुर, त्रिदोष सामक। देवदार लकड़ी, अब जैसे देवदार का वहां पर वर्णन है, तो देवदार में बुरादा आता है और लकड़ी, हमने एक्चुअली में बुरादे में ऑयल कंटेंट खत्म हो जाता है, मैं इसके ऊपर भी आप लास्ट में इसका डिस्कशन करूंगा। हमने ऑयल के साथ हम लेते हैं तो देवदार की प्योरी लकड़ी ली जाती है, उसको जब हम चीरते हैं तो उसमें खुशबू आती है, और ये खुशबू जो है अजमोद आदि का एक पेक्यूलियर अंडरस्टैंडिंग है, समझ आपकी उसकी, कि बहुत ही बेहतरीन और काफी उसकी फ्रेशनेस बनी रहती है। देवदार लकड़ी का यूज है, हमने देखिए उसमें मेंशन भी किया है कि एंड नॉट बुरादा, ऑल्सो चेक फॉर ऑयल कंटेंट। देखिए देवदार के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसके कर्म के बारे में। इसके बाद चित्रक मूलचाल, वहां मूल पाठ में चित्रक का वर्णन है। चित्रक का जो प्रयोज्य अंग है वो चित्रक मूल है। हमने उसकी पोटेंसी को एनहांस करने के लिए चित्रक मूल छाल लिए है, तो छाल जो है और उसकी पोटेंसी को एनहांस करती है। दीपनीय, तृप्तिघ्न, शूल प्रश्मन, भेदनीय, अर्शोघ्न, लेखनीय, कटुस्कंध, इतने सारे इनके जो है चरक के गण में आता है ये। उसके बाद कटु, लघु रूक्ष तीक्ष्ण उष्ण कूट, कटु, कफवात शामक। अगेन इसका जो कर्म है और प्रयोग जो है वो हमने इसमें मेंशन किया है। पिपलामूल, उसी सीक्वेंस में पिपलामूल, कासहर, हिक्का, निग्रहण, शिरोविरेचन, वमन, तृप्तिघ्न, दीपनीय, शूल प्रश्मन और उसका रसगुण वीर्यपाक। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए इस तरह से एनालिसिस करना पड़ता है और काफी इन डिटेल, काफी डिटेल एनालिसिस करेंगे तभी उसका आप मल्टीपर्पज यूसेज कर सकते हैं। सौंफ के बारे में, मधुर तिक्त, मधुर, कटु तिक्त, लघु स्निग्ध, शीत और मधुर, मधुर विपाक है इसका। नेक्स्ट हम पिपली पे चलते हैं। कासहर, हिक्का, निग्रहण, शिरोविरेचन, वमन, तृप्तिघ्न, दीपनीय और शूल प्रश्मन। कटु, लघु स्निग्ध, तीक्ष्ण, अनुष्ण, शीत, मधुर। एनीवे फिर आगे बढ़ते हैं। पिपली के बाद इसी तरीके से काली मिर्च, काली मिर्च को लिया हमने, फिर हरड़ लिया, हरड़ के बाद हरितकी, हरितकी के बाद आपका विधारा मूल, विधारा मूल हमने लिया है, विधारा बीज नहीं लिया, विधारा मूल का हमने इसमें यूसेज किया क्योंकि बीज फिर उसका थोड़े टेक्निकल रीजन से इसके पीछे। और सोंठ, और लास्ट में हमने एक एडिशन किया है, इसके बाद सोंठ है और सोंठ के बाद लास्ट में एक एडिशन हमारा अपनी तरफ से था,
ये संभालु बीज यूज करने का कारण ये था विषाग्न और क्रिमिनल, और साथ में थोड़ा सा ये बैलेंसिंग एक्ट भी इसके अंदर है, काफी पोटेंसी इसकी स्ट्रांग हो रही थी, तो हमने इसको संभालु बीज को इस वजह से इसके अंदर ऐड किया। अब ये मेन इसका चार्ट है, पोटेंसी चेक। रस जो है, कटु रस जो है आपका, दिस इज द एंटायर फॉर्मुलेशन। जब हम सिंगल एकल द्रव्य की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो एक ही ड्रग है, तो उसमें कटु रस ये है, तिक्त ये है और कषाय ये है, गुण ये है। जब हम मल्टी ड्रग फॉर्मुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसके मोड ऑफ एक्शन की हम अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंसी चेक में हमने क्या किया कि जो हमने ऊपर से एक्सप्लेन करते हुए आ रहा था, तो कटु रस जो है ये आपका 10 इंग्रेडिएंट्स के अंदर है, तिक्त 5 में है, कषाय 3 में है, लवण 1 में है और मधुर 1 में है। इसका मतलब अगर हम प्रधान रस देखें तो इसमें कटु रस प्रधान है, ये अजमदादी चूर्ण। इसी हिसाब से गुण में आते हैं, तो गुण जो है लघु 13, यानी कि ऑल 13 ड्रग्स आर लघु इन गुण, ठीक है। देन स्निग्ध 7, तीक्ष्ण 6, रूक्ष 5। कर्म के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इधर वी आर डूइंग लंघन और वी आर डूइंग ब्रंगण। तो लंघन में अब आपकी ये ड्रग जो है ये लंघन के हिसाब से सारी द्रव्य लघु हैं। वीर्य के ऊपर आते हैं तो उष्ण जो है 9 द्रव्य उष्ण है, शीत 2 है और अनुष्ण शीत 2 हैं, मतलब प्राइमरीली इट इज उष्ण वीर्य। देन विपाक, मधुर विपाक, मधुर और कटु विपाक, ये थोड़ा सा बैलेंस है। और त्रिदोष कर्म में अगर हम देखें तो कफ वात शामक 10 ड्रग्स जो हैं ये कफ वात शामक है, तो प्राइमरीली इट इज कफ वात शामक। तो कफ वात शामक को अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम डाल दें तो कफ वात शामक तो बहुत सारी डिजीज में है, उसको हम आगे देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ कफ और वायु दोष बिगड़े होते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। फिर इसी में आगे हमने कर्मों का वर्गीकरण किया कि सिर्फ एक सिंगल फॉर्मुलेशन है, एक एक फॉर्मुलेशन को इस तरीके से स्टडी जब आप करते हैं तो बात बनती है और बहुत खूबसूरत बात बनती है इन योर डे टू डे आयुर्वेद प्रैक्टिस। तो नाड़ी संस्थान पर कर्म जो है मेध्य, अगेन 6 ड्रग्स मेध्य हैं इसमें से, वेदना स्थापन 5 है, नाड़ी दौर्बल्य 3। तो इस तरीके से हमने उसका भी फर्दर एनालिसिस किया। ज्ञानेंद्रियों के कर्म, रक्त वह संस्थान के कर्म, रस वह संस्थान के कर्म, श्वसन संस्थान के कर्म। तो प्राइमरीली पाचन संस्थान में हमने लिया इसे, तो दीपन 13 ड्रग्स जैसा पहले ही मेंशन हो चुका है। शूल के ऊपर जो है 12, यानी कि उदर शूल अगर है, कॉलिक है, तो उसमें 12 ड्रग्स जो है वो काम कर रही हैं। अग्निमांद्य 11 ड्रग्स, पाचन 10। कृमिघ्न देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। कृमिघ्न जो है 9 ड्रग्स, 9 इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें, 13 में से 13 में से आउट ऑफ 13 9 ड्रग्स आर कृमिघ्न। स्त्री प्रजनन के ऊपर इसका रोल है, वो उसका एनालिसिस है। पुरुष प्रजनन के ऊपर वृश्य जो है वो 6 है, शुक्र दौर्बल्य। तो ये किस तरीके से, इस तरह से पूरा आपका सर्व धातु कर्म, ज्वर हर मूत्र धातु कर्म, और ये इस तरह से पूरा इसका एनालिसिस जो है, डिटेल्ड एनालिसिस जो है बहुत जरूरी है किसी भी ड्रग का। दोष कर्म में देखिए आप, कफ वात शामक 10 ड्रग्स हैं, जो ये पहले एक्सप्लेन हो चुका है। अब इसका यूसेज, जब आपके पास पोटेंसी चेक हो गया, आपने इसका ओवरऑल एनालिसिस किया किस तरह से, तो यूसेज, कई बातें हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारा एक्सपीरियंस रहा इस एक ड्रग का। इसके बारे में सिर्फ कफवात शामक लिखा गया है शास्त्रों में, और आमवात, घृद्रसी और कटिशूल, ये 3 का इंडिकेशन है। लेकिन इस इंडिकेशन से आप बियॉन्ड कैसे जाते हैं, वो जब इस तरह से एनालिसिस होता है तो वो बियॉन्ड की जो कहानी है वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है खुद का। एन एक्सीलेंट योगवाही बिकॉज ऑफ त्रिकटु इसके अंदर है। एक्सीलेंट फॉर स्रोत शोधन, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ त्रिकटु एंड हरितकी एंड फॉर आम पाचन। एक्सीलेंट फॉर धात्वाग्नि पाक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है धात्वाग्नि पाक। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, उसकी वो आप सारी फिजियोलॉजी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे नो। तो यहाँ पर धात्वाग्नि पाक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी रोग होते हैं तो वहां पर अग्नि का वैषम्य हमें देखने को मिलता है। तो जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि। जब अगर हम जठराग्नि, तो ये प्राइमरीली ठीक करता ही है, दीपन पाचन है। उसके बाद अगर हम धात्वाग्नि पाक अगर हम करते हैं ढंग से, तो आगे की जो दोष है वो और जो बीमारी है वो काफी अच्छे तरीके से ठीक होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी योगवाही, इट कैन बी यूज्ड ऑन ऑटोइम्यून कंडीशंस, स्पेशली
in कफ वात प्रधान disorders, dilated cardiomyopathy, this is heart failure, हृदय rheumatism, हाशिमोतो थायराइडाइटिस, इन सब के ऊपर जो है युक्ति पूर्वक इस्तेमाल जरूर करें, युक्ति जरूर लगाइएगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में काम काफी अच्छा रिजल्ट है, अलॉन्ग विद सुरंजान। देखिए हमने इसमें साथ में किन किन कॉम्बिनेशंस में काम किया वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सुरंजान एक फॉर्मुलेशन हम लोग बनाते हैं, सुरंजान, हरिद्रादि और त्रिकटु, स्पेशली इन कफ वात प्रधान प्रकृति, आम वात, वात रक्त, अग्निमांद्य, अरुचि, अजीर्ण, मृदु विरेचक, क्रिमिग्न, प्रूराइटस एनस, क्रिमिज हृदरोग, वमन, उदरशूल, आटोप, फ्लैचुलेंस एंड पोस्टवात can be used in IBS. Helps in maintaining the health of gut, the gut microbes, especially when takra is used as anupan. Fatty liver, non-alcoholic fatty liver disease में काफी अच्छा रोल है इसका, metabolic syndrome में बहुत अच्छा रोल है। कासर, श्वासर, इसमें काफी अच्छा impact है इसका। Has shown good results in श्वेत प्रदर along with सुरंजान। In benign prostatic hypertrophy along with सुरंजान, हरिद्रादि, मूत्रल प्रॉपर्टीज इन कफज प्रकृति ओनली, पित्त एंड वात प्रधान, काशिता, अवॉइड इट और इन लेसर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जो लिखा है सिर्फ कफज प्रकृति के लिए है, ये पित्त और वात प्रधान, और जहाँ कार्शिता हो तो यहाँ पर इसे ना लें, कभी तभी अगर जरूरत पड़ जाए तो युक्ति पूर्वक उसकी डोसेज को कम कर लें। हृदयोत्तेजक कैन बी यूज्ड इन ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथायराइडिज्म, गॉइटर, शुष्कार्स, नेजल पॉलिप्स, इन सब के ऊपर ये काम करती है। वाजीकरण ओनली इन केस ऑफ कफा, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कैन बी यूज्ड इन डीजेनरेटिव और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नाड़ी दौर्बल्य लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एपिलेप्सी, सीजर्स, पैरालिसिस, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज अलॉन्ग विद सुरंजान, शतावर, अश्वगंधा एक्सेट्रा। द कॉम्बिनेशन विद गिलोयसत एंड, और ये एक मरोड़ योग हमने बनाया था, इसमें सोंठ, सौंफ और मिश्री का कॉम्बिनेशन है, और कैन बी यूज्ड टू ट्रीट क्रूड कोस्ट। ठीक है, देखिए वही एक फॉर्मुलेशन है, उसी फॉर्मुलेशन को जब हम प्रॉपर उसका डीप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हमारे सामने खुल करके आते हैं, व्हिच इज वाओ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब ये तो खूबसूरती देख ली, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन भी होंगे तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। अति मात्रा एंड अधिकार should be avoided as it may become त्रिदोष वर्धक, because थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। पित्त वर्धक है, अवॉइड यूजिंग लॉन्ग टर्म इन पित्त प्रकृति, एंड इफ नेसेसरी देन यूज गिलोय सत्व और सौंठ, सौंफ और मिश्री along with if it is required। युक्ति जो है चिकित्सा में हमेशा इस्तेमाल की जाती है, बिना युक्ति से काम नहीं चलता। मे इंक्रीज पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया इफ टेकन बिफोर और आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, स्पेशली इन पित्त प्रकृति। ये थोड़ा सा इसमें कई लोग हमें इसको कहते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ये इज नॉट द राइट वर्ड, बट अवॉइड इन रक्तार्बुद, मतलब ब्लड कैंसर में हमें ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, स्पेशली जब हम आगे बढ़ते हैं। तो अवॉइड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, रक्त प्रदर, रक्ताश, अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल भूल के भी मत दीजिएगा। एपिस्टैक्सिस ये बिल्कुल सोचिएगा भी मत कि ये हम अजमुदादी हम इस्तेमाल कर लें। लिवर सिरोसिस में आप हाथ नहीं लगा सकते। रेज्ड लिवर फंक्शन टेस्ट, आप ये देखिए कि हमने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में ये काम कर रहा है, बट अल्कोहलिक फैटी लिवर ये इसमें आप बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि पित्त का वहां पर ज्यादा बढ़ा होता है, और यहाँ पर ये वात और कफ के ऊपर काफी अच्छा रोल है, बट पित्त के ऊपर नहीं। तो अनुपान जो है उष्णोदक, और तक्र इन उदर रोग, IBS, तक्र कैन बी यूज्ड विद कॉशन इन पित्त प्रकृति। ये थोड़ा सा हम ध्यान हमें रखना चाहिए। प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसे हम छोड़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, जब हम एक एक ड्रग के बारे में इतना कुछ लिख रहे हैं तो काफी कुछ जो है हमें और भी बातें साइड में पता चलती हैं। जैसे हमने अल्जाइमर्स के ऊपर काम करना शुरू किया, हमें थोड़ा सा रेफरेंस मिला, हमें ऑटिज्म में भी रिजल्ट मिला। हमने ऑटिज्म से हम आगे बढ़े, हमें हार्ट फेलियर के ऊपर भी काम किया, वही शंखपुष्पी काम कर रही है। महासुदर्शन हमने ज्वर के ऊपर इस्तेमाल करते थे, आज वो n नंबर ऑफ कंडीशंस के ऊपर काम करती है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मास सुदर्शन के ऊपर 2 घंटे का या 2 दिन तक का लेक्चर अगर लिया जा सकता है, अगर इस तरह से इस डिटेल इंफॉर्मेशन के अगर हम जाएं, तो बहुत लंबा चौड़ा सेमिनार सिर्फ और सिर्फ मास सुदर्शन के ऊपर किया जा सकता है। इट इज सच अ वर्सेटाइल ड्रग। तो ये मेरे ख्याल से इसके साथ हम लोग इसको खत्म करते हैं। एनीवे, अभी मैं
फिर से वापस अपने स्लाइड शो पे आता हूं। Charak mentioned the qualities of drugs as Bahuta Tatra Yogyatvam Anekvid Kalpana Sampacheti Chatushkoyam Dravyanam Gun Uchyate. Abundance, effective, can be used in various pharmaceutical forms and enriched with all its natural properties are the 4 qualities of a drug. This is very important जब हम ड्रग की कलेक्शन की हम बात करते हैं और ड्रग के बारे में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये शास्त्र और शस्त्र, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, अब शस्त्र जो है आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ है। शस्त्र कैसे, आप अगर शस्त्र सही नहीं होगा, चलेगा ठीक से नहीं, धार नहीं होगी उसमें, तो वो काम कैसे करेगा? आपके सारा ज्ञान जो है वो रह जाएगा। और अगर आपने शस्त्र बहुत अच्छे बना लिए और आपको चलाने का ज्ञान नहीं है, तो आतंकवादी के हाथ में भी AK-47 है और एक कमांडो के हाथ में भी AK-47 है। वो कमांडो उसे बचा रहा है, एक को बचाता है और एक आतंकवादी जो है वो खत्म कर देता है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की नॉलेज बहुत जरूरी है। हमने जो अभी तक पढ़ा ये एकेडमिक एंगल था, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम आते हैं, शस्त्र की बात करते हैं, तो सेलेक्टिंग द राइट कॉम्बो, जब हम हर्ब्स, हमारा कौन सा फॉर्मुलेशन जो है हमें सबसे बेहतर तरीके से काम करेगा, देन ड्रग कलेक्शन, उसका कौन से सीजन में हमें सबसे ज्यादा पोटेंसी हमें कैसे मिलेगी, वो हमें ध्यान देने वाली बात है। और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एंड देन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डोसेज, अनुपान, सहपान, ये सब। तो जितना प्रिसाइज आप इसको लेते चले जाएंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट्स आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा। सो in the field of internal medicine, there is nothing called one magic pill cures all. There are various variables to synchronize, but at the same time, you dig deeper and you get a wider perspective and a broader spectrum of that same formulation working effectively in various conditions. Thank you all for your patient listening and for your precious time. Many thanks to the entire team of Techno Ayurveda and Dr. KSR Prasad sir, the torch bearer of Ayurveda. You are an inspiration, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Now you can take off this PPT. I request the audience, there might be lots of the questions. Even I have a couple of questions. First of all, I want you to come across with the questions. As you are going to type in the chat box with your questions, if necessary, Harsh, I just call him Harsh only. Sir, yes. Harsh will call you and you can even interact also. Harsh, my question is one thing. Initially, it's a synergistic activity and antagonistic activity of a formulation. What actually I find in one of the studies, the study was about the antimicrobial study of the Surasadi Gana. In the Surasadi Gana antimicrobial activity, when individually the selected drugs, when they are being taken in the lab and checked over the agar plates, the individual, all drugs has shown in between 40 to 70% of the antimicrobial activity. In combination and permutations of the same Surasadi Gana which has been said, out of that, say for example, Surasa, Nirgundi and Dronapushpi were taken at the time. Surasa, Nirgundi, when they are being added, the effect instead of enhancing, it has been decreased. That means there is an antagonism within, even though they are said as a Crimigna in one group, the Crimigna activity which has been shown by these cumulative drugs were less. I have observed later when the study came out, nowhere the Surasadi Gana drugs are in combination has been used whenever they are being used as an antimicrobial.
how come this antagonistic activity of the combination is going to be? Whenever say you have adopted and adjusted the formulation of the traditional. We do not know what this our acharyas has been taught and they made this formulation accordingly. Because when I see the same Ajamodadi churna, as you said very rightly, from 4 ingredients to 13 ingredients, there is a wide range of the ingredients. You said already there are more than 9-10 yogas are available in the textuals. How come we have to understand the inclusion of any particular drug? Is it is going to be mere based upon the karma? Like nowadays, either Himalaya, Charak and etc. pharmacies, all the people, they are just trying to add all the anti-diabetic at one formulation. But there is an antagonism is acting that particular drug, neither it is showing clinical improvement, nor it is showing any sort of the absolute improvement in the patient. As karma of the Prameha Haratvam or Madhumeha Haratvam do not mean all the drugs to be combined at one place. This is what Actually, I have learned. yes. Now, Right. now you can you place some explanation relation with that of the synergism and antagonism? Meanwhile, as the people are trying to type their questions. जब आपके गुरुजन आपसे सवाल पूछते हैं ना तो सवाल बड़ा भारी हो जाता है और बहुत हैवी हो जाता है। I mean, ऐसा sir, कुछ नहीं है, कैपेबिलिटी है I इसीलिए will पूछा गया है। I will try to explain. सर नेचर जो है ना सर, जैसे जब हम पूरे दिन की बात करते हैं तो नेचर ने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नेचर ने काउंटर बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर काम करता है। काउंटर बैलेंसिंग एक्ट वो विद इन है और विद इन द कॉम्बिनेशन है और आउटसाइड द कॉम्बिनेशन भी है। अब जैसे अजमोदादी है, ये उष्ण है लेकिन दिया जाता है पानी के साथ, जल के साथ दिया जाता है, चाय के साथ नहीं दे सकते, गर्म पानी के साथ नहीं दे सकते कि हम उसके इफेक्ट को और ज्यादा हम बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। इसी कॉम्बिनेशन में सौंफ डला हुआ है जो कि शीतवीर्य है, और वो जो आपने कहा तो नेचर का ना, जैसे अब 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे का हम उसे दिन कहते हैं, लेकिन इसी में ही दिन भी है और रात भी है, और इसी में ही जो है आपकी सुबह दोपहर रात है, और रात्रि का भी प्रथम अवस्था है, दोपहर की है, फिर रात की अवस्था है। तो कॉम्बिनेशन जो है ये पंचभौतिकता जो है इसमें रहती है। कोई भी एक गुण प्रधान जो है लेकर के जा सकते हैं, पर बाकी इट इज एज गुड लाइक जैसे हम त्रिगुणों की हम बात करते हैं या त्रिदोषों की हम बात करते हैं, तो सत्व, अकेला सत्व जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला रजस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही त्रिदोषों में अकेला वात एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम कहें कि कोई डिजीज सिर्फ और सिर्फ वात प्रधान है, नहीं। तो वात प्रधान, आप वात प्रधान है, लेकिन वात के साथ उसके अंदर पित्त का कितना कितना डिस्टर्बेंस है और कफ कहाँ तक बिगड़ा हुआ है, ये एनालिसिस एक वैद्य को करना पड़ता है। उसी में ही जो हमारे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक आई है, हो सकता है ये कंप्लीट आंसर ना हो, तो फॉर्मुलेशंस के जब भी हम स्टडी करते हैं तो उन्होंने काउंटर बैलेंसिंग एक एंगल जो है, किसी भी फॉर्मुलेशन को हम देखें तो काउंटर बैलेंसिंग एंगल हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो उसे व्यापक रहित बनाता है, पहली चीज। और उसके उसमें अनुपान के साथ फिर आप उसके साथ ट्वीक कर सकते हैं कि किस समय लेना है, सहपान के साथ ले सकते हैं, डोसेज के साथ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर आपने इसी की उष्णता को और बढ़ाना है तो गर्म पानी के साथ लेकर के देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हमें इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है, थोड़ा सा कम करना है, तो आपने इसमें मट्ठे के साथ लिया, तक्र के साथ लिया, तो इस तरीके से काम करेगा। रही बात सर ये जो आपने दूसरा सवाल इसमें कहा कि चरक और जो जितनी फार्मेसीज हैं, हिमालय हैं, ये ड्रग्स बना रही हैं, तो सारी की सारी एक ही जगह ऐड कर देते हैं। तो एक थोड़ा सा एंटी डायबिटिक है, सारी की सारी ऐड तो कर दी उन्होंने, माल तो बिक रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए सर, प्रॉब्लम क्या हो गई है हमारे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है ना आयुर्वेद को जो है एलोपैथाइज करने में लगे हुए हैं। तो एलोपैथाइज क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड ड्रग, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है कि हमने एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन हमने डेवलप करी, और उसने वो इनवेरिएबली, चाहे वो इंडिया में पेशेंट है, चाहे वो जापान में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे यूएस में है, और उसका इनवेरिएबली शुगर तो डाउन हो रहा है, लेकिन डायबिटीज किसी की ठीक नहीं हुई। तो वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक। हाइपरटेंशन तो सबका ठीक हो रहा है, बीपी तो सबका लो हो रहा है, लेकिन हाइपरटेंशन किसी का ठीक नहीं हो रहा है। सो वंस अ हाइपरटेंसिव ऑलवेज अ हाइपरटेंसिव।
यही चीज हम सीधे सीधे जो है हम लोग आयुर्वेद में हम कट कॉपी पेस्ट करके लेकर के जा रहे हैं, विच इज प्योर वैदिक इसे सपोर्ट नहीं करता। टाइप 2 डायबिटीज इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो आयुर्वेद जो है मेटाबॉलिज्म में काम करने की बात करता है। अभी 10 पेशेंट हमारे पास हैं, एक 40 साल का पेशेंट है जो डायबिटीज में अभी अभी उसे शुरू हुआ है, और एक 60 साल का है जो 10 साल से डायबिटीज। हम दोनों को एक चिकित्सा कैसे हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो वही चीज जो है हमें थोड़ा सा समझना होगा, और ये वैद्यों को भी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अपनी मेडिसिन को लेकर के। आपके आसपास कोई फार्मेसी है तो उसे जाकर के गाइड करें, और तब मेडिसिन Right, sir. Thank you. थैंक यू सर। And here there is one question by Vishwa Patil has made out. Why there are no studies of the such antagonism and synergism with the modern drugs? In the same study which I have witnessed, it has even the allopathic, otherwise the modern medicine, antibiotics also being added. When they are being added with the standardized antibiotics, all the Ayurvedic drugs have shown enhancement of the antimicrobial activity. That means with the modern chemical, if suppose say, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अभी ये जो अजमोदादि चूर्ण, अजमोदा is very specifically Sula Prashamana and Vedanastapaka, and especially I feel Amase Samuthana Vyadhis, it is going to act. If suppose we are going to use any antispasmodic medicine of the allopathic added with the Ajamoda, maybe tomorrow world may see such sort of the combinations, the whatever the antispasmodic plus Ajamoda together as a tablet. Dishans used to prepare the herbo mineral, and it is a very old Hyderabad pharmacy. All the things they mix it and they made it, but they worked very fantastically. I have one more small question here. This Krimigna activity is more in that of this Ajamodadi Churna. Each and every herb which we are including in a combination do need lots of the discussion. One combination maybe get discussed even for the 24 hours also. The Krimigna activity, does it refer to that of the Helicobacteria pylori, which is going to be used of the Amase Samuthana, otherwise Amlapitta, which we are going to speak? This sort of the antimicrobial activity should be to be shown in the only within the vicinity of the stomach. Is that this idea of this Ajamodadi Churna formulation by the our ancient acharyas? जी सर, इसमें से दो बातें हैं सर। एक तो आपका, पहले मैं एलोपैथी का ले लेता हूँ सर। मैं प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ और मैं कॉम्बिनेशंस नहीं यूज करता। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस अभी 23 साल की हो गई है। Only the question here is, the question which is asked by our spectators has been answered. In that particular research, I just mentioned, I am not encouraging. In that particular research, it has been shown when the antimicrobial activity is being witnessed in the lab, the allopathic drug combination, when it is being used, the enhanced result has been shown. That means सर इसका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, इसके ऊपर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। देखिए, नॉलेज इज व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, राइट? तो रिसर्चेस बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिश होती हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग एंगल है। लेकिन आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो एक अलग ही, उसके डायनेमिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो बिल्कुल अलग होते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसमें, जो पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आता है तो वी डू नॉट नीड एनी एलोपैथी मेडिसिन। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है तो हम, कोई बीच में कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए या कोई और कंडीशन आ जाए, तो फिर हम अपनी उनसे कहते हैं पेशेंट को कि भाई आप हमारी मेडिसिन को विड्रॉ करिए फॉर द टाइम बिंग। दूसरा, कोई पेशेंट पहले से ही एलोपैथी मेडिसिन लेकर के आ रहा है, 10 साल डायबिटीज हो गए हैं, 10 साल से मेडिसिन खाते खाते वो अभी वो लेकर के आ रहा है। अभी हम लोग जो है उसको एकदम से विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हमारा टारगेट होता है कि हम उसे विड्रॉ करें धीरे धीरे, और अपनी मेडिसिन पूरी तरीके से हम लें, और इवेंचुअली हम अपनी मेडिसिन को भी विड्रॉ करें। ये हम लीवर सिरोसिस पे कर रहे हैं, ये हम हार्ट फेलियर के ऊपर कर रहे हैं, ये हम अल्जाइमर्स के ऊपर हम कर रहे हैं, ये यू नेम द डिजीज, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है।
दिस इज हाउ वी वर्क, राइट सर? तो ठीक है, वो साइंस अपनी है, वो उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनकी। मुझे ये लगता है कि इमरजेंसी की कोई बात है, छोटी मोटी बात है, आप हफ्ता 10 दिन की कोई इमरजेंसी है तो आप जाएं वहां पर, बट उस टाइम पे आप मिक्स ना करें और अपनी मेडिसिन के ऊपर भरोसा रखिए, क्वालिटी। मैंने यहाँ पर एक शास्त्र और शस्त्र की बात कही, तो शस्त्र में जो है ना, जब हम ड्रग कलेक्शन की हम बात करते हैं, तो अजमोद जो है ना, अजमोद की आप क्वालिटी आप जब मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितना कूड़ा करकट उसके अंदर डाला होता है। आप नंबर 1 क्वालिटी अजमोद लेकर के आइए, जिसके अंदर ऑयल जो है ना, जब आप यहाँ नाक के पास रखते हैं तो आपको खुशबू आती है। तो ये प्रैक्टिकल फील्ड में अब है क्या, हमने इंग्रेडिएंट्स तो वहां पे लिख दिए, लेकिन वो अजमोद कितना इफेक्टिव है, उसकी पोटेंसी कितना है, तो ये सारी चीजें तो तब आएंगी ना, उसका रस गुण विभाग प्रभाव तो तब होगा ना कि हमारा ड्रग का सिलेक्शन और कलेक्शन का जो टाइम था, क्या हमने उसे ठीक से लिया, क्या हमने उसकी सफाई ठीक से करी, क्या हमने उसको जो जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। हमने ड्रग्स क्वालिटी रॉ ड्रग्स कलेक्ट करी, पहले तो क्वालिटी ली, उसके बाद अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। द्रोण पुष्पी हम लोग यूज करते हैं एक कॉम्बिनेशन में। द्रोण पुष्पी जब हम रेंज के बाद जब आती है तो उसकी क्वालिटी कुछ और होती है, और जब हम रेंज से पहले लेते हैं तो उसकी पूरे साल भर हमें वेट करते हैं कि हमारा अक्टूबर का मौसम आए और तब हम जो है फ्रेश द्रोण पुष्पी जो है, ताजी द्रोण पुष्पी हम लें और उसे खुद छाया में सुखा करके तब हम उसको फॉर्मुलेशन में डालें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। सिर्फ देखिए, माल बेचना, दवाई बेचना और पेशेंट को ठीक करना, दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, और उसके डायनामिज्म बिल्कुल अलग अलग है, डायनामिक्स बिल्कुल अलग अलग है। ओके सर। सर, और एक छोटी सी प्रश्न आपका उत्तर से उत्पन्न हुआ। सो अगर यदि कोई पेशेंट जैसा हमें आयुर्वेदिक ड्रग्स देते टाइम पे एलोपैथिक ड्रग्स को विड्रॉ करो बोले, या एलोपैथिक ड्रग्स लेते टाइम पे आयुर्वेदिक ड्रग्स को विड्रॉ करो बोले, जब सपोज समझ लीजिए कोई इंसान एलोपैथिक ड्रग्स ले रहा है बट आयुर्वेदा स्टार्ट्स फ्रॉम द किचन, अगर यदि ये अजमोदा वो ले लिया, तो एलोपैथिक ड्रग के साथ अजमोदा का जो भी कुछ ले लिया या अजवाइन का वो जो भी लिया, सपोज कोई चूरन बना के खा लिया खाने में, वो तब सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी होगा या एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होगा या नो एक्टिविटी होगा? सर बहुत जबरदस्त एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी ये होगी कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अल्कोहल लिया, अभी शाम का टाइम फ्रेंड्स के साथ आपने 2 ड्रिंक ले ली, 3 ड्रिंक ले ली, थोड़ा सा हेडेक हुआ, आपने महासुदर्शन लिया, आई एम नॉट ठीक है? आई डोंट कंज्यूम, इफ एनीबॉडी यू से प्लीज। तो अभी महासुदर्शन ले लिया, महासुदर्शन जो है वो आपका हेडेक ठीक करेगा और अल्कोहल का भी मैनेज कर देगा। So लेकिन you अगर आपने अजीन are you advising leave 52 tablet before going for the bar? नो सर, सर हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड के आदमी हैं सर, तो हमारे लिए मर्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारी चीजें तो वेरिएबल्स हैं। तो इसमें हैविंग सेड दैट, जब हम अजमोदादी देते हैं अजीर्ण के लिए कि भाई अल्कोहल लिया ऊपर से अजीर्ण हो गया, उसकी वजह से हेडेक हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन किया, मैं अजीर्ण हो रहा है तो मैं अजमोदादी ले लेता हूँ, वहां पर सर वो डैमेज कर देगा। ऐसे ही, क्योंकि इसकी तीक्ष्ण प्रॉपर्टीज है, तीक्ष्ण प्रॉपर्टी है, ये अडेप्टेबल जो क्वालिटीज हैं वो हर ड्रग में नहीं होती, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कालमेघ के ऊपर आप, मेरा एक प्रेजेंटेशन है सर, मेरी रिसर्च है, उसमें अडेप्टेबिलिटी के ऊपर काफी विस्तार से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसको यूज किया जा सकता है ड्रग्स, एलोपैथी ड्रग्स के साथ, वहां पर दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन एनी केस होता क्या है कि अगर हम शोधन चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो शोधन क्या होगा कि सेलुलर टॉक्सिसिटी के ऊपर जैसे ही काम होगा, तो एलोपैथी जो भी ड्रग जा रही है उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस बेहतर होने से उसके एडीआर इश्यूज भी क्रॉप अप हो जाएंगे, एडीआर इश्यूज ज्यादा दिखने के, आपको इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। वही जो हमने जो है महासुदर्शन डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज में देना शुरू किया, वो ऑलरेडी जो है एंटी ग्लाइसेमिक मेडिसिन जो है वो ले रहा है ना, शुगर के लिए मेडिसिन, डायबिटीज के लिए मेडिसिन ले रहा है। अब हमने उसका जब एनालिसिस करा रहे हैं, इसलिए हम 15-15 दिन में फास्टिंग पीपी और हर 3 महीने में HbA1c हम लेकर के चलते हैं। हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कहाँ हमें कैसे विड्रॉ करना है, तो वहां पर हमें विड्रॉल जरूरी ही है। अगर अदरवाइज जो है, अगर दोनों चीजों को साथ लेकर के चलेंगे और आपकी मेडिसिन प्योर है, अगर क्वालिटी नहीं है, आपकी मेडिसिन में दम नहीं है, फिर तो आप कुछ भी करिए। लेकिन अगर दम है मेडिसिन में, तो दोनों चीजें साथ साथ चलने में दिक्कत आएगी, और आप क्रॉस चेक करके रखिए, तो धीरे धीरे उसे विड्रॉ करें।
Right, sir. Thank you. And I have one more question also. Sure, sir. आपने जब योगा बताते टाइम पे वमन भी एक शब्द निकाले है, पंचकर्मा का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है, अभी जी। वमन में ये अजमोदादि चूर्ण आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? सर पंचकर्मा में सर मेरा कोई खास अच्छा एक्सप्लेनेशन वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको उसके मेरा इंटरनल मेडिसिन में मेरी एक्सपर्टीज है। पंचकर्मा जो हमारा वेलनेस सेंटर है वहां पर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, तो वो हैंडल करते हैं उस चीज को। मेरी जो एक्सपर्टीज है, कोर एक्सपर्टीज, वो इंटरनल मेडिसिन में है। ओके और सर, थैंक अजमोदादी यू। का जो वमन में हम कैसे उसे दे सकते हैं उसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बता सकता। हाँ, पूर्व कर्म में दीपन पाचन के हिसाब से बहुत अच्छा काम करेगा। वेरी गुड। ओके, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन। जी सर। आप तो बहुत अच्छा योगा प्रैक्टिशनर भी है, जी योगा सर। अंडरस्टैंडिंग भी है। जी। ऐसा कोई योग पोस्चर है, जो आसन पोस्चर, जो अजमोदादि चूर्ण लेने के बाद या कोई औषधि लेने के बाद कोई योगा पोस्चर में बैठने से, रहने से, करने से अपना आयुर्वेदिक की दवा का और भी ज्यादा गुणोत्तर हो जाए? हाँ सर, ये बहुत क्या बात है सर, क्या बात है सर। इंटरनल मेडिसिन ना सर एक प्रकार की छेड़छाड़ है सर हमारी फिजियोलॉजी से। और क्योंकि डिजीज कंडीशन ऑलरेडी सेट इन हो रखी है, तो डिजीज अपने आप में छेड़छाड़ है। तो डिजीज को जब छेड़छाड़ है, तो हमने होता क्या है कि उधर से हेल्दी सेल्स अपना काम कर रहे होते हैं, उधर से डैमेज सेल्स अपना काम कर रहे होते हैं, और कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध का मैदान, आपकी बॉडी युद्ध का मैदान होती है। तो बॉडी रात को हील होती है सर। जब हम सोते हैं, जो हम आहार निद्रा ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो निद्रा जब हम लेते हैं तो बॉडी हील होती है। बॉडी जब हील होती है तो सुबह का जो समय है, हम लोग ये कहते हैं कि भाई आपको कोई मेडिसिन हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये हम लोग एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं कि भाई हमें शुगर की मेडिसिन लेनी है या थायराइड की मेडिसिन लेनी है, हम उन्हें मना करते हैं कि भाई आप योगा के बाद लीजिएगा, अभी नहीं। तो एक आधा घंटा आपने पानी पिया, फ्रेश हुए, और उसके बाद योगा मैट पे आ गए। तो योगा मैट आप 1 घंटा मेडिसिन खा करके कोई भी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंशियल नॉलेज के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। आपने योगा किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया, उसके बावजूद भी तब भी उसके इमीडिएट बाद भी नहीं लेना चाहिए, अनटिल अनलेस कि बहुत ज्यादा कफ का कुछ डिपेंड करता है कि भाई हम शोधन चिकित्सा कर रहे हैं या शमन चिकित्सा कर रहे हैं, या लंघन कर रहे हैं या भ्रंगन कर रहे हैं। और अगर लंघन कर रहे हैं तो पेशेंट कितना बल्कि है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 किलो का वजन है, तो योगा करने के तुरंत बाद वो मेडिसिन ले ले और उसका इफेक्ट ज्यादा दिए। लेकिन अगर हम 70 केजी में, हाइट उसकी 5'10" है, 70 केजी में हम लंघन चिकित्सा कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमने योगा के बाद अगर हमने वही मेडिसिन दे दी, तो हमारे लिए वो उल्टा पड़ जाएगा, उसके एडवर्स ड्रग हमें देखने को मिलेंगे। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा सेंसिटिव हैं। ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटे बाद अगर आपने योगा नहीं किया या एक्सरसाइज नहीं किया, तब आप ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर वो अगेन देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स टू कंसिडर। नो वन रूल फिट्स टू ऑल, मतलब वन साइज फिट्स टू ऑल वाला रूल नहीं लगता आयुर्वेद सर। Okay, sir. Thank you. And here we end. And if at all anybody have any question, please unmute and ask. Jamsin Sehgal is madam is there. Yeah, she is my wife. Yes, of course. I wish a concluding remarks with her. Okay. Thank you, sir. Madam, you are welcome. Jamsin, madam. जैस्मिन, अनम्यूट करो जरा आपने। She can come to your place and speak otherwise. Concluding remarks. Just a second, sir. She is joining. Okay. And meanwhile, I see many people actually for this session, more than 65 members has been enrolled. I send Okay. everybody the message. They came to know that this particular video is available in YouTube later. That's why the people, होता है, they sir. want to see leisurely at home. Because Actually, sometimes many people, after it looks very small discussion for us,
But some people say it is like an aeroplane to us, sir. I said, what is this aeroplane? It goes above the head many a time. Well, maybe it is very simple for you, but it is something difficult to understand. See, here we have included today this how the dynamism of this formulation and utility to analyze it. You have given a sequenciation as an example drug is a very fantastic. I want Thank you. concluding remarks from the Jasmine madam. Please, Jasmine madam. some Namaskar, sir. concluding Namaskar. Namaskar, all the audience. Sir, I couldn't get your point, sir. Can you please put it across one more please time? you please conclude with your comment. Somebody should comment something. You are the best opponent. Yes. Sir, let the opposition remain inside the home only. Not like that. Even in the see, this is a professional, madam. It is not related with any home affairs. This is external affairs. Yeah. Sir, professionally, we are working as a team. Hmm. So in my opinion, like, first of all, thanks to School of Techno Ayurveda for conducting such sessions so that the knowledge of experience Vaidyas is put across, and I think it benefits a lot of people. Thank you. And sir, and I wish you all the best, and I really pray that this platform grows, spells and bounds, and it reaches out to millions and millions of aspirants. Thank you. Thank you, madam. And here today we close. Thank you once again, Harsh. Thank you, And sir. I bless you for the Thank you, sir. future Thank you so success. much. You have to reach a Thank you. big heights in Ayurvedic fraternity. Thank you Sure, sir. and good day Thank you, for sir. all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Jasmine madam. Thank you, sir. Thank you, sir.